So very good morning, students. Today we are going to revise the topics of civics on equality, role of government in health. Okay. So I want that side by side your participation must be there because this is the revision time. So जहाँ पे explanation की requirement है, I will explain the terms, I will explain it to you, I will resolve your queries, but side by side your participation is required. Okay. So on equality, when we talk about equality, it is the key feature of democracy. जब हम 6th में भी थे तो हमने जब चैप्टर डाइवर्सिटी भी पढ़ा था वहां पे भी हमने वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, कास्ट सिस्टम के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, वी टॉक्ड अबाउट स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइज एंड हाउ दीज स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइज लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी. तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, so being a democratic country, हमारा जो मेन जो फीचर है that is equality, that we should treat each and every individual equally. चाहे वो वर्क के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरी वन इक्वली. और सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ का जो एक प्रिंसिपल है, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दैट इज द आइडिया दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इक्वालिटी. जब हमने 6th क्लास में सफरेज मूवमेंट की बात की थी, so there were countries in Europe side those who gave the right to vote in late 90s, 1928 1920s में उन्होंने राइट टू वोट दिया था विमेन को. बट थैंक्स, जब हम फ्री हुए, हमें जो ये राइट टू वोट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वी गॉट दिस राइट एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कोई भी किसी भी कास्ट का है, जेंडर का है, किसी भी प्लेस का है, रीजन का है, तो एवरीवन कैन कास्ट द वोट एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. अब ये नहीं है कि स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को दे कैन कास्ट 2 टाइम्स, मतलब एक जगह में 2 बार उनकी वोट डल सकती है या उनकी वोट की वैल्यू 2 है. नो, फॉर एवरीवन देयर इज 1 वोट 1 वैल्यू. ठीक है, ईच पर्सन, हर एक पर्सन की एक वोट है और एक ही वैल्यू काउंट होती है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. सो इन दिस चैप्टर वी आल्सो स्टडीड 2 एक्सपीरियंस, जहां पे हमने बात की थी कि यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, बट इन इंडिया so many types of inequality exist. The basic जो type की inequality है, that is on the basis of what? Write down in the chat box. The main जो type of inequality that exists in India. Hurry up. Caste, okay. Religion, very good. So on the basis of caste, on the basis of religion, वैसे भी और भी हैं, economic inequality भी है, gender inequality भी है, जो most common है, that is caste and religion. So in your book, the 2 experiences or 2 incidents were mentioned related to, किससे रिलेट करते हैं, कौन 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 से एक्सपीरियंस है? हु इज गोइंग टू टेल मी? जस्ट रेज हैंड. हु इज गोइंग टू टेल मी दैट? ओके, वर्लीन. Good morning, ma'am. Ma'am, about Ansaris and ma'am Valmiki ji. वाल्मीकि जी नहीं बेटा, ओम प्रकाश वाल्मीकि. यहाँ पे वो महर्षि वाल्मीकि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है एक पर्सन की बात हो रही है, हुज नेम वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि. Okay, so who is going to tell me the incidents of Om Prakash Valmiki? So what type of inequality he faced? Okay, Niyamat. They were not allowed to sit with the other children on the mats and the desk. They has to clean the playground and the school. बेटा वो एक अकेले इंडिविजुअल थे तो दे नहीं लगेगा, ही लगेगा. ओम प्रकाश वाल्मीकि सिंगुलर है तो ही के साथ आंसर आएगा. लेट मी आस्क सम अदर वन. हाँ जी अंकित. Om Prakash Valmiki was discriminated because of his caste. He was considered a lower class and he was said not to sit on the seats but to sit on the floor and study apart from the other students. He was also asked to sweep the whole floor and the playground.
Okay, very good. Well tried, Niyamat and Ankit. बहुत अच्छा आंसर. Okay, let me ask someone else. Uh, Manveer Singh. Manveer Singh. Other incidents, other experience. Ma'am, Mr. and Mrs. Ansari wanted to take apartments, and when they reached there, they in their religion there was no killing of animals, but there were many people who were non-vegetarians, and when they want at last they went to the old lady who gave them the apartments. So be precise and clear means because of their religion they didn't get the apartment. ठीक है, जब उनको पता लग रहा था कि देवर मुस्लिम्स, दैट्स वाई कि उनको कहा कि यहाँ पे हिंदू पीपल रहते हैं, नॉन वेज को भी प्रेफर नहीं करते, दैट्स वाई दे डिडंट गेट द अपार्टमेंट. इवन जो उनको अपार्टमेंट दिलवा भी रहा था तो उसने भी क्या सजेस्ट किया, टू चेंज द नेम, है ना, मिस्टर एंड मिसेस कुमार में चेंज, मतलब नेम चेंज कर लीजिए, पर एट लास्ट दे गॉट द अपार्टमेंट. They didn't want to change their name because जो उनका रिलीजन है, तो उनको अपने रिलीजन पे फेथ था, रिस्पेक्ट था, तो वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स आल्सो. ठीक है, बट इन बोथ द केस दे फेस द इनइक्वालिटी, देयर डिग्निटी वाज हर्ट. उनकी डिग्निटी मतलब डिग्निटी वाज वायलेटेड, मतलब उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी दैट वाज वायलेटेड. Okay, now in this chapter we also studied about one thing that was done by the government. They are steps taken by the government to achieve equality, to increase the max attendance of students in the school. Okay, let me ask, what did the government do to increase the attendance so that the students can come to school regularly? Okay, Tejas. Ma'am, they organize midday meal in every government school so that they will not go to their homes for eating, and some students when went to home they did not come back again, so they organize midday meal in schools. और समटाइम्स जो उनकी मदर्स भी होती थी, दे हैड टू लीव देयर वर्क इन बिटवीन ना, उनके लिए कुक करना पड़ता था, तो दे हैड टू लीव द वर्क, एंड समटाइम्स व्हेन दे गो बैक टू देयर होम्स दे डिडंट कम बैक. एक बार घर चले गए फिर वापस ही नहीं आते थे, तो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम. नाउ just write down in the chat box which was the first state that introduced the midday meal program and in which year. Well done, Tejas. Very good. Okay, Manya, very good. Tamil Nadu 2001. Very good. Very good. Okay, just write down the name of the book that was written by Om Prakash Valmiki. Very good, Akshara. Very good, Ranjita. Very good. It's the name of the book was, ठीक है, Juthan. So this book is biography or autobiography? The book written by Om Prakash Valmiki, it's biography or autobiography? No, Tanveer. Yes, Sahajveer. Okay, Ganika, ठीक है बेटा. हाँ जी, autobiography. ठीक है, जो book थी that is autobiography. जब हम अपनी life के बारे में खुद लिखते हैं, that is autobiography. So now the Constitution also talk about the equality that we have already done in class 6. So who is going to tell me the provisions regarding the equality in our Constitution? Provisions regarding equality in our Constitution. Okay, Anshita. Very good. Just give me the answer. All people are equal before the law. Untouchability has been abolished. No one can discriminate others on the basis of their caste, religion, gender, etc. Every person has the right to go to public places like temples, public wells, etc. Okay. When we are talking about everyone is equal before law, मतलब laws are same for each and everyone. चाहे वो हमारे country का president है या हमारे घर में काम करने वाले domestic workers.
for each and everyone law is equal. और सबसे बड़ी बात untouchability has been abolished. One who is practicing the same will be considered as crime. So it's our responsibility to treat each and every individual equally, and we should not hurt anyone's dignity also. जो हमारे घर में काम करने भी आ रहे हैं उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, तो हमें उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ठीक है. बीइंग अ डॉक्टर, that person is also doing a job. Being a domestic worker, that is also doing a job. अगर वो आपके घर में ना आए या स्वीपर आपके नेबर उसमें ना आए, स्ट्रीट में ना आए, तो who is going to clean that? ठीक है. So जो भी हर कोई काम कर रहा है, that person should be treated equally. Yes. And बेटा, when we are talking about equality, ये एक दिन का काम नहीं है कि हमने equality को achieve कर लिया. We have to work it for sincerely, effortlessly and continuously. इसके लिए हमें स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा, इसके लिए हमें बार बार कोशिश करती रहनी पड़ेगी. ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कुछ मेंशन हो गया एंड वी अचीव द इक्वालिटी. जो डेमोक्रेसीज हैं वो इस इक्वालिटी को कब अचीव कर सकती हैं? जब वो कॉन्टिन्यूसली इसकी तरफ स्ट्राइव करती रहेंगी, इनके लिए वर्क करती रहेंगी और एफर्ट्स करती रहेंगी. और सबसे बड़ी बात, बीइंग एन एक्टिव सिटीजन, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वली. अब आपके चैप्टर में एक और इंसिडेंस आता है, सिविल राइट्स मूवमेंट. सिविल राइट मूवमेंट, कैन एनीवन वांट टू एक्सप्लेन कि ये क्यों हुआ था? एनीवन? सिविल राइट्स मूवमेंट. बानी. ओके बानी, बोलिए बेटा. यस बानी, गिव द आंसर. फॉरेनर्स में थे तो डिस्क्रिमिनेट करते थे. जैसे जो लोअर कास्ट के हैं वो बस के एंड सीट पे बैठेंगे, अगर वो बेटा फर्स्ट सीट लोअर पे कास्ट नहीं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज नॉट देयर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर ऑन द बेसिस ऑफ कलर. ठीक है. इफ यू कैन लेट मी जस्ट आस्क फ्रॉम वन अदर स्टूडेंट. ओके मान्या, गिव द आंसर. And the civil rights movement started in United States where people were discriminated on the basis of color. This act, the Civil Rights Act, prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. ओके बेटा, आई जस्ट आस्क्ड अबाउट द सिविल राइट मूवमेंट, ये क्यों हुआ था? ओके, आयुष तिवारी. Civil right movements was started by African Americans in 1964. It was prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It was also started that all schools were open to African Americans children and that they would no longer have to attend separate schools specially. Berlin, you are giving me the answer of Civil Right Act. आप जो आंसर दे रहे हो that is related to Civil Right Act. उस एक्ट के आने से पहले there were African Americans, those who raised their voice because they were discriminated on the basis of the race. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. लाइक आपके यहाँ पे इंसिडेंस लिखा गया, बताया गया है कि जब वो बस से ट्रेवल करते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते थे तो उनको दे हैड टू लीव देयर सीट फॉर द वाइट पीपल. उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी, फॉर बस सीट छोड़नी पड़ती थी फॉर द वाइट पीपल. सो देयर वाज वन वुमन, रोजा पार्क. वन डे शी वाज ट्रेवलिंग बाय द बस, सो शी रिफ्यूज्ड. और जो ये सब चीजें हुई थी 1950s में हुई थी, ठीक है. सो शी रिफ्यूज्ड टू गिव हर सीट बिकॉज शी हरसेल्फ वाज टू मच टायर्ड. शी वाज नॉट विलिंग टू गिव हर सीट टू द वाइट. तो वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया एंड इन 1964 सिविल राइट एक्ट पास किया गया जहां पे ये कहा गया नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. तो जो ये अफ्रीकन अमेरिकन हैं दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली.
इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड वट एवर पॉइंट्स आर गिवन बाय द वर्लिन दैट इज रिलेटेड टू द सिविल राइट एक्ट। मूवमेंट कब हुआ? जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, और उसके बाद जब उन्होंने एजुकेशन किया, वो मूवमेंट लेड की, तो उसके बाद एक लॉ पास हुआ, एक एक्ट बना, दैट वाज सिविल राइट एक्ट, जहां पे ये प्रोविजंस किए गए that they could also study in the same school, पर फिर भी किसी ना किसी हद तक they were not getting the same facilities। जो रिच सोसाइटीज में गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो बहुत अच्छे से डेवलप थे एज कंपेयर टू द पुअर, ठीक है। तो फिर भी इस चीज को तभी हम कहते हैं ना कि जो इक्वालिटी है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अचीव्ड इन अ वन डे, फॉर दैट वी नीड टू डू गो फॉर अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल, ठीक है। नाउ विद दिस चैप्टर 1 is over. Now we are going to just revise the chapter 2, role of the government in health. So health, अब जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, इफ वी टॉक अबाउट हेल्थ, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द इक्वल एंड इजिली एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल। पर कहीं ना कहीं इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, दैट एवरी वन ऑफ अस नाउ आर नॉट गेटिंग द सेम हेल्थ फैसिलिटी। ओके, तो सेम हेल्थ फैसिलिटीज की जब हम बात करते हैं, इट मींस पब्लिक एंड प्राइवेट, यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है। सो व्हेन वी कैटेगराइज द हेल्थ केयर सिस्टम, तो उसमें 2 सिस्टम्स आ जाते हैं, वन इज पब्लिक, वन इज प्राइवेट। और हेल्थ क्या है? द स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, सो इट मींस हमारी मेंटल फिटनेस की बात, हमारी फिजिकल फिटनेस की बात, दैट वी शुड बी फ्री फ्रॉम इलनेस, ठीक है। But in this we can also talk about sanitation, we can also talk about surroundings। हम अपनी सराउंडिंग्स की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं कि हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सराउंडिंग्स भी क्लीन होनी चाहिए, सैनिटेशन भी क्लीन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात हम मेंटली भी साउंड होने चाहिए, ठीक है। So we should be body wise also we should be healthy and mentally we should also be healthy, okay। So in this chapter we also talked about the positive aspect कि जो इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, और नेगेटिव में क्या है, मतलब जो हमारी रियलिटी है जिसको अभी तक हमने अचीव नहीं किया। So many government colleges are there, गवर्नमेंट मतलब मेडिकल कॉलेजेस आर देयर, so many government hospitals are there, but still there are many people those who are not getting the proper healthcare facilities in our country। So many people are died because of malaria, because of tuberculosis, ठीक है। तो काफी सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टिल वी आर वर्किंग अपॉन दैट। चाहे हमारा जो कंट्री है दैट इज द 4th लार्जेस्ट और द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन प्रोड्यूसिंग द मेडिसिन, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। स्टिल यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक हमने अचीव नहीं किए। अब इतनी ज्यादा नॉलेज गेन करने के बाद, क्योंकि अगर हम डॉक्टर की स्टडी अगर हम देखें ना कि मेडिकल की स्टडी है तो उसमें पैसे नहीं लगते, तो लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी स्टडी हार्ड, वी पेड अ लॉट। अब इसके लिए हम कहाँ सेटल हो जाएंगे? अर्बन एरियाज में। वो कहाँ पे प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं? अर्बन रेदर देन रूरल एरियाज। तो वहां पे लैक ऑफ दैट हेल्थ फैसिलिटीज आर देयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज, तो हमारे पास प्रॉपर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होने चाहिए, वर्किंग स्टाफ होना चाहिए, मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर भी होनी चाहिए बेटा। अब स्कूल बना दिया, बिल्डिंग बना दी, पर उसमें टीचर नहीं है, या एक टीचर 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाए, या वहां पे टीचर्स मतलब 10 क्लासेस को पढ़ाने के लिए हार्डली 4 टीचर्स हों, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह सेम इन द हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल शुड बी देयर। अगर हॉस्पिटल्स बने हैं तो वहां इक्विपमेंट, वहां पे मैन पावर, नर्स होनी चाहिए, डॉक्टर्स होनी चाहिए, और साथ में लेबोरेटरीज होनी चाहिए, इवन एम्बुलेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, साथ में आपके नियर बाय ब्लड बैंक होना चाहिए, कभी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। To meet all these emergencies, we need all these things, ठीक है। अगर वहां पे मान लो डॉक्टर ही नहीं है तो आप किसके पास जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को हमने मेंटेन करके रखना है। एंड इन दिस आल्सो वी आल्सो टॉक अबाउट द हाकिम शेख केस, जहां पे हमने राइट टू लाइफ के बारे में पढ़ा था, दैट इज आर्टिकल 21।
उसको कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया गया था, कहीं पे उनके पास बेड फैसिलिटीज नहीं थी, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं थे, एट लास्ट उसने अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। इट मींस उसका कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ वायलेट हुआ था, है ना। तो वायलेट होने से कहीं ना कहीं उसको उसकी लाइफ को भी डेंजर हो सकता था, अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो मर भी सकता था, ठीक है। और जहां पे उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया, दैट वाज टू मच कॉस्टली। ये हमने पढ़ा था प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में, ठीक है। एनी डाउट हियर सो दैट आई कैन कंटिन्यू। अब जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक हॉस्पिटल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अब इनको रन करने के लिए, बिकॉज दीज सर्विसेज आर रन बाय द गवर्नमेंट, और इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को मनी चाहिए। फ्रॉम वेयर टू द गवर्नमेंट गेट द मनी? फ्रॉम द टैक्सेस, वट एवर वी आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो उसका जो कुछ पार्ट है, दैट इज स्पेंट फॉर आवर हेल्थ सर्विसेज ऑल्सो। डिफेंस में भी होता है, स्पेंड होता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स में भी स्पेंड होता है, रोड्स बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। तो ये सारा मनी कहाँ से आता है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, वहां पे बहुत सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, बट समवेयर हाउ दे आर कॉस्टली, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट। और जो ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? मोस्टली इन द अर्बन एरिया। अगर आप फगवाड़ा का भी एग्जांपल लो, वी आर हैविंग वन सिविल हॉस्पिटल एंड वन ईएसआई। ईएसआई इज ओनली फॉर द एम्प्लॉइज, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे यहाँ पे जो क्लिनिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ताकि हमें वेट ना करनी पड़े, इसके लिए चाहे वो 200 चार्जेस करें, 500 चार्जेस करें, वी आर रेडी टू पे, बिकॉज हमें लगता है टाइम हमारी जल्दी टर्न आ जाएगी और डॉक्टर अच्छे से हमें ट्रीट कर लेंगे, उनके पास फैसिलिटीज ज्यादा है। पर ऐसा देखो, अगर हम सोचा जाए, पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे भी डॉक्टर्स इक्वली क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो जब हम पब्लिक सिस्टम की बात करते हैं, रूरल एरियाज में क्या है? उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहां उनके पास डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, हेल्थ वर्कर्स भी हैं। और जो ये नर्सिस एंड हेल्थ वर्कर्स हैं, दे आर ट्रेन्ड बाय द डॉक्टर्स। फिर हमने आरएमपी की बात की थी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कुछ टाइम के लिए वो डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो अपनी खुद की शॉप खोल लेते हैं। पर कहीं ना कहीं अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो, इनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई इनकी डिग्री नहीं है, थोड़े टाइम किसी को ऑब्जर्व किया, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स किसी को ऑब्जर्व किया, एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देयर ओन, ठीक है। सो दिस टर्म वी हैव डन, ओके बेटा। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ना कहीं वो एक्सपेंसिव क्यों होती हैं? कई बार हमें वो एक्स्ट्रा मेडिसिन लिख देते हैं, जैसे हमने इसमें केस में, दो फ्रेंड्स के केस में पढ़ा था कि जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो उसको कितनी सारी मेडिसिन खाने को दे दी, पर जब पब्लिक हॉस्पिटल में गया जो दोस्त, उसको सिर्फ एक ही मेडिसिन दी कि आपका बुखार इससे कम हो जाएगा। मतलब अननेसेसरी चार्जेस, कई बार हमें पता भी नहीं होता किस किस चीज के उन्होंने चार्जेस लगा दिए। इवन द मेडिसिन, देयर आर मेनी मेडिसिन दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट विद वेरी लेस प्राइस। हम मोस्टली कंपनीज को देखो, पता है क्या होता है? ब्रांड, जैसे हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उसी तरह जो ब्रांडेड मेडिसिन जिनको प्रॉपर कोई कंपनी बनाती है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा है। बट देयर आर मेनी जेनरिक मेडिसिन जो उनकी जैसे ही, मतलब हमें मेन क्या बात करनी चाहिए, वो किस केमिकल की बनी है, किस सॉल्ट की बनी है। अगर सेम केमिकल, सेम सॉल्ट की मेडिसिन आपको लेस प्राइसेस में अवेलेबल है, तो व्हाई वी आर नॉट परचेजिंग दैट। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले कहते हैं जो बाहर जो केमिस्ट की शॉप है ना, उसी से आप मेडिसिन खरीदना। कई ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कमीशन रखी होती है। तो जो ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, दैट इज अफोर्ड बाय ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। उसमें से भी जो 40% है, जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं, दे हैव टू बोरो द मनी, उनको लोन लेना पड़ता है, उनको अपनी चीजों को गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। तो आफ्टर ऑल कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ सर्विसेज तो प्रोवाइड हो जाती है, मे बी किसी ना किसी कारण से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट शुड वर्क अपॉन दिस, कि गवर्नमेंट को अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा डेवलप करना चाहिए, और ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ओपन करने चाहिए, सो दैट हर एक को ये फैसिलिटी मिल सके।
Okay, any other doubt in this chapter? And at last आपके लास्ट में दो आपकी केस स्टडीज हैं, वन इज रिलेटेड टू केरला, अदर इज रिलेटेड टू द कोस्टा राइकन. ठीक है, कोस्टा राइकन आपने पढ़ा था, वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री के बारे में. इन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए क्या किया, केरला ने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए क्या किया. इवन जो केरला गवर्नमेंट थी उसने अपने बजट का 40% किसको दिया, टू हुम दे हैव गिवन 40% ऑफ देयर बजट, किसको दिया, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. यस, पंचायत को दिया. वेरी गुड, ताकि वो वहां पे आंगनवाड़ी, हेल्थ केयर सिस्टम, सैनिटेशन, इस चीजों को मेंटेन कर सके. ओके, और कोस्टा राइकन ने क्या अपना डिसीजन लिया, द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टा राइकन, which decision was taken by them? Yes, no army. The amount that was spent on army, that is now going to be spent on the health of the people. ठीक है, उनको बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी. अगर इंडिविजुअल हम खुद हेल्दी होंगे तो जब भी कोई वॉर होगी तो हम अपने नेशन के लिए वी आर देयर फॉर देम. ठीक है, so I hope these two chapters are very much clear to you. Still, if you have any query, you can ask.